Let us discuss about the questions from question bank of science and technology part 2, that is science 2 का lesson number 3 life processes and living organisms part 2. फर्स्ट वन क्या है, क्वेश्चन 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन. लेसन नंबर 3 का चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बाइनरी फिजन. उसका जो आंसर है वो 23rd पेज में दिया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज बाइनरी फिजन. और यहाँ पे क्या दिया है, यूनिसेलुलर नहीं दिया है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन नहीं होता है. 21st फिलअप, फाइंड द ऑड वन आउट. इसमें से ऑड वन आउट क्या है, एंथर. स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो है वो गाइनोशियम में आता है, एंथर जो है वो एंड्रोशियम में आता है. यू कैन सी इन दिस फिगर, stigma, style, ovary is a part of what, gynoecium, और anther comes in androecium. तो odd man out इधर क्या है, anther. Choose the correct option. 22nd one, at the time of birth there are dash oocytes in the ovary of female fetus. तो आंसर क्या है, 2 to 4 million. ये पेज नंबर 29 में दिया हुआ है. In case of women at the time of birth there are 2 to 4 million immature oocytes in the ovaries of female fetus. 23rd fill-up, dash modern remedial technique is used if there is a problem in implantation of embryo in the uterus. तो आंसर क्या है, surrogacy. That is given in page number 32. Some women have problems in implantation of embryo in uterus. Such women can take the help of modern remedial technique called as surrogacy. 24th fill-up, implantation of embryo occurs in uterus. ये लेसन में बहुत सारी जगह में दिखाई देगा. Now in page number 30 also it is given, the zygote after undergoes repeated mitotic division and embryo is formed. Once it reaches, it इधर क्या है, embryo. So once embryo reaches the uterus it is implanted. तो कहाँ पे ये implant होता है embryo, uterus में. 25th fill-up, in humans sperm production occurs in the organ dash. तो आंसर क्या है, testes. ये पेज नंबर 29 में दिया हुआ है. Sperms are produced in testes of men. 26th fill-up, pregnant mother supplies nourishment to her fetus through, answer है placenta. This is given in page number 30. An organ called as placenta is formed for supply food material during the growth in uterus. 27th fill-up, dash twins are formed from a single embryo. Answer is monozygotic. तो इसका जो ये जो फिलअप है पेज नंबर 33 में दिया हुआ है, monozygotic twins are formed from single embryo. 28th fill-up, pollen grains are formed by dash division in locules of anthers. तो ये आंसर क्या है इसका, meiosis. ये पेज नंबर 25 में दिया है, gametes are formed by the meiosis. तो फीमेल गैमेट हो या मेल गैमेट हो, both are formed by the meiosis. 29th fill-up, asexual reproduction occurs by dash cell division. तो आंसर क्या है, mitotic. ये पेज नंबर 22 में दिया है, this is uniparental. this के जगह में क्या रहना चाहिए, asexual reproduction. So asexual reproduction is uniparental reproduction and it occurs by mitotic cell division. This method of asexual reproduction is seen in paramecium. तो आंसर क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. ये पेज नंबर 23 में दिया है. बाइनरी फिशन में ये सब एग्जाम्पल्स है, अमीबा, पैरामिशम और यूग्लिना. तो पैरामिशम का बाइनरी फिशन कौन सा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. 31st fill-up, in meiosis the number of chromosome becomes half. तो आंसर क्या है, half. This is given in page number 25. In meiosis chromosome number is reduced to half. 32nd fill-up, generally every month dash ovum is released in the abdominal cavity alternately from each ovary. तो आंसर क्या है, 1. ये पेज नंबर 29 में दिया है, generally every month an ovum का मतलब क्या, 1 ovum is released in abdominal cavity alternately from each ovary. तो इधर an का मतलब क्या हो गया, 1. 33rd fill-up, dash is present in unisexual flowers. तो आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. या तो एंड्रोशियम रहेगा नहीं तो गाइनोशियम रहेगा. यहाँ पे दिया है, फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल इफ एनी वन ऑफ दी
अबाउ मेंशन टू वर्ड इज प्रेजेंट, अबाउ मेंशन का मतलब है एंड्रोशियम और गाइनोशियम इज प्रेजेंट इन द फ्लावर. इफ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड मेल फ्लावर, एंड इफ ओनली गाइनोशियम इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड फीमेल फ्लावर. जैसे कि पपैया का है, ये यूनिसेक्सुअल है क्योंकि इसका फीमेल फ्लावर अलग होता है, मेल फ्लावर अलग होता है. बाइसेक्सुअल में ऐसा नहीं, जैसा हिबिस्कस शू फ्लावर जो रहता है उसका दोनों भी एंड्रोशियम गाइनोशियम सेम फ्लावर में रहता है. सच अ फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल में एंड्रोशियम अलग रहता है और गाइनोशियम अलग रहता है. तो या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, दैट इज वाई what is the correct answer, androecium or gynoecium is present in unisexual flowers. 34th fill up, flowers without stalk are called, answer क्या है, sessile. This is given in page number 27. Flowers without stalk is called as sessile. 35th fill up, the energy required by the sperms come from the dash. कौन सा आंसर, फ्रुक्टोज शुगर. ये पेज नंबर 29 में दिया, यहाँ पे पिंक बॉक्स में, स्पर्म नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, फॉर दिस पर्पस फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द सीमेन. तो आंसर क्या है, फ्रुक्टोज. 36 fill up, in 44 plus XX, 44 means number of autosomes. तो इधर क्या आएगा, ऑटोजोम्स. दैट इज गिवन इन पेज नंबर 32. 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स रहता है और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम रहता है. 22 पेयर्स का मतलब जोड़ी, 22 जोड़ी, तो यानी कितना क्रोमोजोम रहेगा, 44. तो ये 44 क्या है, ऑटोजोम्स, और 1 पेयर यानी एक जोड़ी, यानी ये XX जो है सेक्स क्रोमोजोम है. तो उन लोग ने फिलअप्स में क्या पूछा, 44 क्या होता है, ऑटोजोम्स. सो दैट इज व्हाट the answer is. In 44 plus XX, 44 means what, number of autosomes. 37th fill up, an organ called as dash is formed for supply of food material during the growth of the embryo in the uterus. So answer क्या है, placenta. इसका जो आंसर है पेज नंबर 30 में दिया है. An organ called as placenta is formed for supply of food material during the growth in uterus. तो किसका ग्रोथ, एम्ब्रॉय का ग्रोथ के लिए फूड मटेरियल, सप्लाई फूड मटेरियल कहाँ से आता है, प्लेसेंटा से. लेसन नंबर 3 का चूज द करेक्ट ऑप्शन का लास्ट वन कौन सा है, 38. 38 क्या पूछा है, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन आर द सिम्टम्स ऑफ डैश सेक्शुअल डिजीज. तो आंसर क्या है, गोनेरिया. ये पेज नंबर 34 में दिया है. यहाँ पे बहुत सारा सिम्टम्स दिया है. जो सिम्टम्स ऑफ गोनेरिया है उसमें से पहला वाला सिम्टम क्या दिया, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन. तो पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन आर द सिम्टम्स ऑफ व्हाट, गोनेरिया. क्वेश्चन 1B, फाइंड एन ऑड वन आउट. लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है. कैरेट, रेडिश, पटेटो, स्वीट पटेटो दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में. इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, पटेटो. वाई पटेटो, बिकॉज कैरेट, रेडिश और स्वीट पटेटो जो है वो मॉडिफाइड रूट्स है और पटेटो जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है. सो पटेटो इज द ऑड वन आउट. क्वेश्चन नंबर 7, बडिंग, रीजनरेशन, बाइनरी फिशन, फ्रैगमेंटेशन. इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, बाइनरी फिशन. वाई बाइनरी फिशन, जो बडिंग, रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन और बडिंग. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है बाइनरी फिशन. इसके लिए ऑड वन आउट कौन सा है, बाइनरी फिशन. 8th क्वेश्चन में क्या दिया है, अमीबा, पैरामीशियम, साइकॉन, यूग्लिना. तो ऑड वन आउट इधर क्या है, साइकॉन. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और साइकॉन जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यू कैन सी ऑन पेज नंबर 23. यूनिसेलुलर के अंडर आता है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, और पेज नंबर 24 में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंडर आता है साइकॉन. तो ऑड कौन सा है, साइकॉन. 9th क्वेश्चन जो है, वास एफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, एफिडिडाइमस, वास डेफरेंस. तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड. वाई प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है पैड नहीं रहता है, जोड़ी में नहीं रहता है, बाकी सब पैड रहते हैं, दैट इज दे आर इन जोड़ी. तो वास एफरेंस, एफिडिडाइमस, वास डेफरेंस दे आर paired, but prostate gland is not paired, they are single. So you can see in page number 29 यहाँ पे दिया हुआ है all the organs of male reproductive systems are paired except urinogenital duct और prostate gland. तो prostate gland जो है वो paired नहीं है.
10th question, prostate glands, Bartholin glands, Cowper's glands, seminal vesicle. इसमें odd one out कौन सा है? Bartholin glands. Why? Because prostate glands, Cowper's glands और seminal vesicle ये जो है male reproductive system का part है. You can see over here seminal vesicle, prostate glands और Cowper's gland. This is male reproductive organ का part है. और बार्थोलिना जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. यू कैन सी ओवर हियर बार्थोलिना ग्लैंड कम्स अंडर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. 11th क्वेश्चन, स्टिग्मा स्टाइल पोलेंस ओवरी. तो इसमें ऑड वन आउट क्या है? पोलेंस. स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी जो है वो गाइनोशियम का पार्ट है और पोलेंस जो है वो एंड्रोशियम का पार्ट से. यू कैन सी ओवर हियर गाइनोशियम में आता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और एंथर जो है एंड्रोशियम में आता है और एंथर में रहता है पोलेंस. 12th क्वेश्चन क्या है? हिबिस्कस, पपैया, सनफ्लावर, रोज, मैंगो. तो इसमें ऑड वन आउट क्या है? पपैया. वाई पपैया? क्योंकि हिबिस्कस, सनफ्लावर, रोज, मैंगो जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है और पपैया जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. यू कैन सी इन पेज नंबर 26 ये हिबिस्कस फ्लावर है. तो हिबिस्कस, सनफ्लावर, रोज और मैंगो जो है बाइसेक्सुअल है. उसका गाइनोशियम और एंड्रोशियम जो है वो सेम फ्लावर में है. लेकिन पपैया में ऐसा नहीं है. पपैया में फीमेल फ्लावर अलग होता है और मेल फ्लावर अलग होता है. लेसन नंबर 3 का लास्ट ऑड वन आउट कौन सा है? डेंगू, सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स. तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा है? डेंगू है. बाकी का 3 जो है सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और डेंगू इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. क्वेश्चन 1b, रिलेट द फॉलोइंग. ये जो लेसन नंबर 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? अगर अमीबा का फिशन है तो हाइड्रा का क्या है? बडिंग. ये पेज नंबर 25 में दिया है. हाइड्रा रीप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बडिंग. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कैलेक्स अगर सेपल्स बोलते हैं तो कोरोला को क्या बोलते हैं? पेटल्स. दैट इज गिवन इन पेज नंबर 26. हियर यू कैन सी कैलेक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स and corolla are called as petals. तो आंसर क्या है? petals. क्वेश्चन नंबर 6, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हिबिस्कस है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है? पपैया. ये पेज नंबर 26 में दिया है. ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हिबिस्कस है और पपैया जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि इसका फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग होता है. यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है? पपैया. क्वेश्चन नंबर 7, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ ओसाइट. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ओव्यूलेशन. ये पेज नंबर 31 में दिया हुआ है. डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट, इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ओसाइट इज रिलीज. दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. तो आंसर क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से क्या होता है? ओव्यूलेशन. लेसन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? कोरिलेशन का 8th क्वेश्चन में क्या दिया है? एसेसरी वर्ल्स कैलिक्स एंड करोला है तो एसेंशियल वर्ल्स क्या है? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ये पेज नंबर 26 में दिया हुआ है. कैलिक्स एंड करोला आर कॉल्ड व्हाट? एसेसरी वर्ल्स. एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड एसेंशियल वर्ल. तो एसेंशियल वर्ल में क्या आएगा? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. क्वेश्चन 1b, राइट ट्रू और फॉल्स. ये लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड थ्रू माइटोसिस और मियोसिस. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. प्रोकैरियोटिक सेल कभी भी मियोसिस से डिवाइड नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. 3rd स्टेटमेंट क्या दिया है? पोलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रॉय सैक विया स्टाइल. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ये पेज नंबर 27 में दिया है. पोलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रॉय सैक विया स्टाइल. 4th स्टेटमेंट क्या है? समटाइम्स ट्विंस आर जेनेटिकली डिफरेंट. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ये पेज नंबर 33 में दिया हुआ है. डाइजाइगोटिक ट्विंस, सच ट्विंस आर जेनेटिकली डिफरेंट. 5th statement, pollen grains from anther are transferred on the stigma. This is also a true statement. ये पेज नंबर 27 में दिया है. pollen grains from anther are transferred to the stigma. Question 1b, 7th one, define. लेसन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 4 से. क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में डेफिनेशन देना है? फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन का डेफिनेशन जो है वो पेज नंबर 24 में दिया हुआ है. In this type, that is in fragmentation, in this type of reproduction, the body of parent organisms breaks up into many fragments and each fragment starts to live as an independent new organism.
फिफ्थ क्वेश्चन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये पेज नंबर 25 में दिया है टेक्स्ट बुक का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डेफिनेशन क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड बड इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सिक्स क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन, ये पेज नंबर 27 में दिया है। मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एग सेल, ने तो फीमेल गैमेट भी लिख सकता है, to form zygote, this is fertilization. I repeat once more, male gamete unites with the egg cell to form zygote, this is fertilization. नहीं तो you can also write male gamete unites with the female gamete to form zygote, this is fertilization. Seventh question regeneration, ये पेज नंबर 24 में दिया है। Under certain situations an animal breaks up its body into two parts and thereafter each part regenerates the remaining part of the body and thus two new organisms are formed. This is called as regeneration. Lesson number 3 का लास्ट डेफिनेशन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज इनफ्लोरेसेंस। इसका जो आंसर क्या है? The inflorescence is defined as the arrangement of a cluster of flowers on a floral axis.